first unit, we have covered a lot in this unit, like I discussed earlier, marketing definition, then nature of marketing, scope of marketing. That means what does marketing cover in its ambit. Then after that, we discussed approaches to marketing or evolution of marketing or orientation to marketing. So we discussed this also. Then all these concepts of marketing, the evolution, selling concept, marketing concept, holistic marketing concept, selling versus marketing. We also discussed a little bit selling versus marketing. So this is the diagram that how selling and marketing are different from each other. Then marketing mix, the last topic that we discussed in the previous class. And today's discussion, marketing environment. So what does environment generally means? Environment simply means your surroundings. What is in your surroundings? आपके चारों तरफ क्या है कि आपका जहाँ पे रह रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं उसके चारों तरफ क्या है? What is in your surroundings? So that is basically environment. It may consist of natural things. It may consist of living things, non-living things, whatever. What does you having over your surrounding? It is called as environment. So any environment in the context of marketing or in the context of business plays a very important role because it defines or it affects your business, your marketing, your firm, or any other activity that you perform in your organization. How will you be doing your business? How will you be offering your products and services to your customers? How will you be marketing different things to them? Will be governed by the environment that has in your surroundings. So your environment, your marketing environment or your business environment will affect your business activities. It may affect your supply side or it may affect your procurement of goods, raw materials. It may affect your duration of delivery of goods and services. For example, you are sending your goods and services to your customers through transport system. For let's take example, let's assume that you send your goods and services through trucks. If there is strike by truck unions or if there is some natural calamities like it may be flood, it may be raining, it may be what you call any landslide or whatever. So your environment will affect your business activities. So how you are able to control your business, how you are able to do your business will be governed by your environment, your business environment. And in the context of marketing, we call it as marketing environment. Also, these environments also gets affected by your marketing activities, your business activities. Suppose you are operating in a society and you are manufacturing some goods. When you manufacture goods, it is quite obvious that you will need raw materials. When you need raw materials, what you do? You take it from society's resources. Like for example, you are making some finished product of iron materials. So you will need iron as a raw material, and you will go to mines and you will extract the raw material from the mines. When you extract raw materials from the mines, iron mines, what you are doing? You are just reducing the availability of that raw material by extracting iron raw materials that is needed for your business. So
In turn, you are also affecting your environment, your marketing environment. First of all, your environment or marketing environment is affecting your business activities, and in turn it is also getting affected by your activities, your firm's activities. Suppose another example, you produce something and you have set up your factories, and you have machineries installed with them. When you produce something, in the process of operating of your machines, it generates smoke and pollution. So you are affecting environment, you are polluting environment. Suppose you are dumping waste water in the rivers or in the other areas that has the water, so you are just polluting the river water, and also creating noise pollution through the noises of heavy machineries that has been installed in your factory by you. So your environment also gets affected. For example, uh, there may be innumerable example of how your business activities are getting affected by the business environment or marketing environment, and in turn how the your business environment or marketing environment is getting affected by your firm's activities. So we will discuss this one by one. So how environment impacts your business activities, and how activities performed by you in your business organization impact the environment in turn. So a company's marketing environment, generally if we are to define the marketing environment, so a company's marketing environment consists of the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with target customers. So actors and forces, what are these actors and forces, we will also discuss. So any company's marketing environment consists of those forces and actors that impact marketing management's ability in terms of building and maintaining a successful relationship with target customers. So how do you offer your customers your products and services is impacted by your marketing environment. आपकी क्या क्षमता है, आपकी एबिलिटी कैसी है, आप अपने कस्टमर के साथ कैसे प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, उनको कैसे आप फाइनली उन तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद हाउ डू यू मेंटेन अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, इट मीन्स अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. So if we just recall the concept of marketing, or the crux of marketing, it is nothing but managing a profitable, successful relationship with your customers. The crux of marketing simply says, this definition or this statement has been given by Philip Kotler, the guru of marketing. So marketing is nothing but managing profitable profitable relationship with customers. So when we call successful relationship with target customers, it is nothing but the profitable relationship with your customer. So your marketing environment is impacting your ability to build and maintain successful relationship with target customers. So how do you offer them, and how do you make reach your products to them, how do you distribute your products to them, how do you promote, whatever activities is being performed in the marketing is getting affected the environment of your company or marketing environment. Suppose, let's take an example. When we discuss this micro and macro environment, there are various actors and forces. We will discuss it later on. It may be your internal environment, it may be your external environment, it may be your micro environment, it may be your macro environment. Suppose when we are doing business and we are dealing in consumer products, so we have we know that there are consumer organizations, consumer forums, where consumers can register their grievances and get redressal of the same.
Suppose you sold a product to a customer that has some defect, that has some defect, and when customer buys your product, takes it to his home, and when he opens it and when he uses it, he finds that there are some defect. So now what he does, he come back to your company and explains the defect that has been in your product. When you accept that defect and assure customer that this product will be returned, or we will offer you some another product in a replacement of this. When you do this, there is no issue. But when you decline to do, or when you deny to do this, there is an issue. Now customer will go to those consumer forums, those consumer organizations, and he will lodge a complaint against your company, that this particular company sold me this product, and this product has some defect which I told to that company, and they refuse to replace this or rectify the defects. So when he lodges a complaint against your company, it is impacting your business. How? When he lodges a complaint, other people will also see that some complaint has been lodged by a customer against this company, or in consumers forum they will see that a complaint has been registered against your company. Or it might be possible that the customer goes into his surroundings and among his friends or colleagues, he says that please do not buy this product, as this company does not replaces the product when the product has some defect. So how this particular example impacted your business? First, when a customer lodges a complaint, it is having a negative impact. और जब आपका कस्टमर जाके अपने दोस्तों के साथ या अपने कुलीग्स के साथ जब बताता है, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, तो उसके थ्रू बताता है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो वो उसको रिप्लेस नहीं करते, उसको रेक्टिफाई नहीं करते, बल्कि हमें कंज्यूमर फोरम्स में, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लेंट करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो हमारी बात को सुनते हैं। तो आपका जो बिजनेस है उसको तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर जो आपका है, जब हम इसमें मैक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे तो उसमें स्टेक होल्डर्स में हमारे कस्टमर्स भी आएंगे, तो उसको हम देखेंगे कैसे वो हमारा एक्टर है एक, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है कि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रहा है। So you have to be very careful about your marketing environment or your business environment and see how my environment is affecting my business, and in turn how my business activities are affecting the environment. So this is just a simple example. So when talking about types of environment, so basically we have given two types of environment, micro and macro. So the micro environment, we can call them those environment that have a direct impact on company's ability to offer goods and services and maintain a successful relationship with the customers. So micro environment is sometimes it is also seen as internal environment, or most suitably task environment. So micro environment is the very first element of your micro marketing environment. जी सर, माइक्रो एनवायरनमेंट टास्क एनवायरनमेंट कैसे हुआ? देखो उसमें क्या है, टास्क जो एनवायरनमेंट है या हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है, दोनों सेम चीजें हैं। अब जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाई जो है इंटरनल या इंटीरियर कह देते हैं, तो जो सिनोनिम्स यूज किए जा रहे हैं,
अलग अलग चीजें नहीं है, सिनोनिमसली यूज किए जा रहे हैं। अच्छा। चाहे हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहें, चाहे हम टास्क एनवायरनमेंट कहें, दोनों सेम चीजें हैं। वो कैसे हैं अभी उसको हम और आगे देखेंगे। बताओ सर, बताओ एक बार। हाँ, तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है कि हमारा डायरेक्ट एनवायरनमेंट, जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे एक डायरेक्ट एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। जो टास्क एनवायरनमेंट की बात की गई और जो ब्रॉड एनवायरनमेंट की बात की गई, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो जो हमारा ब्रॉड एनवायरनमेंट होता है जिसको मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, तो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ही हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड होता है। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट या ब्रॉड एनवायरनमेंट क्या है। किसी कंट्री का लीगल सिस्टम है, किसी कंट्री का लीगल सिस्टम है। जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये ट्रू भी नहीं हो सकता है, बट मान लेते हैं किसी कंट्री का लीगल सिस्टम है, वो मैक्रो एनवायरनमेंट है। जब वो मैक्रो एनवायरनमेंट है या ब्रॉड एनवायरनमेंट है, तो जब हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें होंगी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका लॉज होगा, जनरल लॉ होगा, फिर उसके बाद आपके स्पेसिफिक लॉ होंगे, आपके बिजनेस लॉ होंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। हाँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल होता है। तो मैं एक, इसीलिए मैंने कहा कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। बट सर आपने माइक्रो का था टास्क। देखो वही, देखो मैं दोनों का डिफाइन कर रहा हूँ इसी। जो ठीक है। हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है वो जो है मैक्रो एनवायरनमेंट का एक सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि वो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है, या हम कहें कि जो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जो कुछ भी वो ऑफर कर रही है, उसके बहुत नजदीक है। जब आप अपनी बुक्स में जो है इस डायग्राम को देखेंगे, तो जो लेयर होती है एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट होती है, उसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट होती है, फिर उसके बाद फिर एक्सटर्नल पे जाते हैं, और कई सारे ऑथर तो उसको और कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दैट इज नॉट दिस पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लीगल सिस्टम है, ठीक है। ठीक है, आपने कहा पॉलिटिकल सिस्टम का वो पार्ट है। अब पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी कई सारी चीजें आती हैं, उसमें एक छोटा सा होता है लीगल सिस्टम। तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में आपके पॉलिटिकल थॉट आएंगे, उसमें पॉलिटिकल रिलेशनशिप आएगी, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल जो है विंग्स कैसे हैं, क्या जो है राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, या मिक्स्ड अप है, और बहुत सारी चीजें आएंगी। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो गई। फिर उसके बाद उसमें आता है हमारा लीगल सिस्टम आता है, जिसको फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करते हैं, फिर जनरल लॉज में डिवाइड करते हैं, फिर आपके बिजनेस लॉज होते हैं, कई सारे लॉज होते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है बहुत बड़ा एनवायरनमेंट। तो लीगल सिस्टम आपका है। अब लीगल सिस्टम के अंदर आपको सपोज करो कि आपका कोई बिजनेस का गवर्न करने के लिए एक लॉ है। लॉ हम मान लेते हैं कि हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसको बाद में अमेंड किया गया। पहले इससे 2013 से पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956। तो अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अमेंडेड सेवरल टाइम्स, उसमें क्या है कि सपोज करो कि आपका जो है बिजनेस करने का कोई तरीका है, और उस पे वो कुछ कहता है कि सपोज करो कि उसमें बता दे कि भाई कंपनी की डिफिनेशन क्या होगी, कि अगर जी ये चीजें पाई जाएंगी कि कॉमन सील होगी, परपेचुअल जो है उसका सक्सेशन होगा, उसमें एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होगी, एक नेम होगा, और उसमें कुछ जो मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ पर्सन है जो उसके मेंबर्स होंगे। अगर ये सारी चीजें जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये सारी चीजें होगी तो वो हमारी कंपनी कहलाएगी। तो अब जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। मैक्रो में हमने कहा कि ठीक है, वी हैव अ लीगल सिस्टम दैट में कंसिस्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर जनरल लॉज, योर स्पेसिफिक लॉज, योर बिजनेस लॉज, whatever, and from them, among them you have Companies Act 2013 that is having a direct impact on your business. So that is micro environment. Take another example. हाँ जी, बोलो, कुछ कह रहे हो आप? सर देखो, जैसे कि जी। अभी ये पबजी वगैरह बैन हुआ है, ठीक है, हम्म। यानी हम्म। कंपनी पे इम्पैक्ट हुआ है।
सर एक बार बता दो इसमें माइक्रो एनवायरनमेंट का रोल कहाँ था और मैक्रो एनवायरनमेंट का रोल कहाँ था? पहली बात तो जब हम पबजी वगैरह की बात करें या किसी फर्म का अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू उस पर एक्शन होता है तो वो पार्ट होता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट का, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट एक्शंस है वो हमारे सारे फॉर्म हो रहे हैं आपके कंपनी के बाहर, जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होंगे। अभी आपका और मैं बारीकी से बताऊंगा कि माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है या मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट क्यों है। क्योंकि जब गवर्नमेंट सिस्टम आता है उसके जो लॉज होते हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट एक्शन होता है उसको हम बाद में रखते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। कई बार हम उसको माइक्रो में भी ले जाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आपको कौन सा अप्लाई करेगा, आपके सप्लायर्स। मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे सम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपको चाहिए थी और आपके सप्लायर उसको नहीं सप्लाई कर पाए, तो वो आप क्या करेगा, आपकी प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर देगा। तो जो चीज हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी उसको हम पुट करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर या टास्क एनवायरनमेंट के अंदर। जब मैं माइक्रो एनवायरनमेंट कहता हूं या टास्क एनवायरनमेंट कहता हूं तो बोथ आर यूज्ड एज सिनोनिमसली, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। तो जो चीज हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर पुट करेंगे। समझ में आया सर बट इन स्टार्टिंग आपने तो कहा था माइक्रो कंपनी के अंदर होता है, अब आप कह रहे हैं बाहर जो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल देखो उसमें कंपनी के अंदर कैसे होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा ब्रॉड एनवायरनमेंट, ब्रॉड कह रहा हूँ, जो हमारा जनरल एक अगर ऐसे देखा जाए तो पबजी को बैन गवर्नमेंट ने किया था तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो सर ये माइक्रो हुआ अकॉर्डिंग टू तुम्हारा कॉन्सेप्ट सर जो आप पढ़ा रहे हो अभी। देखो उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पबजी पे बैन किया, ठीक है वो हो रहा है, लेकिन उसको हम किस एक्सटेंट में देख रहे हैं। अभी मैं इसीलिए बात कर रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम माइक्रो के अंदर अभी कई बार पुट करते हैं और कई बार हम उसको मैक्रो के अंदर पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, गवर्नमेंट तो माइक्रो कैसे हो सकती है सर? मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको सप्लायर का एग्जांपल दिया, आपने कहा कि मतलब कि अब सप्लायर हमारे कंपनी के बाहर है तो वो हमारे माइक्रो के अंदर कैसे आए। यही बात है कि अगर हमारे सप्लायर कंपनी के बाहर है तो वो कैसे आए हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। तो जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स में आपके कंपनी होती है, खुद उसके एम्प्लॉयज होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, आपकी सोसाइटी होती है, आपके सप्लायर्स। सर अब आ गया थैंक यू सर। यस सर आ गया, थैंक यू। फिर उसी में गवर्नमेंट भी होती है, तो इस वजह से हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है। So the micro environment consists of the actors close to the company that affect its ability to engage and serve its customers. So the very first layer of the environment of a company is known as micro environment, and it consists of those actors that are very close to company and they have a ability to affect the company in terms of its ability to engage and serve its customers. So they have a direct impact on the ability of a company to engage and serve its customers. So जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि वो इन्होंने पबजी के एग्जांपल दिया और मैं आपको दिया सप्लायर्स का एग्जांपल कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। So this is micro environment, the very first layer of your marketing environment or your business environment. तो बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग एनवायरनमेंट की और बिजनेस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो कंफ्यूजन इसलिए मत रखना क्योंकि जो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर से ही आया है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, उसमें सारी चीजें आपके बिजनेस को गवर्न करती हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज को अब इम्पैक्ट कर रही है
वो सारा एनवायरनमेंट। तो उसमें से हम फोकस करें क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की ही बात कर रहे हैं। बट बाय एंड लार्ज whatever environment a business has will whatever environment a business has, all the actors and forces will also come in place when we talk about marketing environment. So this is your micro environment that is very close to your company, and it has a direct impact on your ability to serve and engage with your customers. So the actors इन द माइक्रो एनवायरनमेंट, तो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से वो फोर्सेस हैं, कौन कौन से वो एक्टर्स हैं जो आपके मार्केटिंग सिस्टम को, आपके बिजनेस सिस्टम को इम्पैक्ट करें। तो सबसे पहला इसमें क्या है, कंपनी है। तो ये जब मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा था वो वही सारी चीजें हैं और ये कुछ नहीं है। आपके जो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो ये हो रही है, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो कंपनी, आपकी कंपनी के खुद क्यों डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे, आप अपने कस्टमर को ऑफर करने के लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, उनसे आप कैसे इंटरैक्ट करेंगे, उनको कैसे आप हैंडल करेंगे जब उनके पास कोई क्वेरी है, उनकी कोई ग्रीवांसेस है, तो वो आपकी कंपनी जो भी, क्योंकि बिकॉज यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद योर कस्टमर, सो any activity performed by your company will have a direct impact on your marketing environment or your business environment. So this is first element of your micro environment of marketing environment. Suppliers, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो आपका रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं या किसी और चीज के सप्लायर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल के अलावा आप कोई पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कार्स का, तो उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आप टायर कहीं और बनाते हैं, उसकी विंडशील्ड कहीं और बनाते हैं, इंजन कहीं और बनता है, उसकी जो रूफ टॉप है वो कहीं और बनती है, स्टीयरिंग कहीं और बनती है, वगैरह वगैरह। सो सप्लायर्स, योर सप्लायर, बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर कंपनी। व्हेन अ पर्टिकुलर सप्लायर स्टॉप्स द डिलीवरी ऑफ पर्टिकुलर सप्लाई, देन योर production activity gets stopped. So whatever element that has a direct impact on your company's ability to engage and serve your customer, those activities or those actors will come under the micro environment. Next in the line are market intermediaries. So resellers, financial intermediaries, physical distribution firms, marketing services agencies. We'll discuss one by one. Resellers, basically your wholesalers and distributors and retailers. Wholesalers generally purchases from you in bulk and he further sells it to retailers or distributors. He further sells your products and services to distributors, and distributor sells those products and services to retailers, and retailers in the final process sell those products and services to your customers. So that channel, marketing channel, offering of your goods and services, that marketing channel, that from company, then your wholesalers, then distributors, then retailers, and finally customer. So this is the basic chain of marketing channel, that how your goods and services will reach to your customers. So resellers will have a direct impact on your business activities. Financial intermediaries, those who have given you loan or provided credit, so they will also have a direct impact on your company. Suppose कीजिए कि आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको लेबर चाहिए होगा, और उसके साथ साथ आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो फाइनेंस है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मेजर रिक्वायरमेंट, बेसिक एंड मेजर रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आएगा, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो आपके जो बैंक्स हैं, आप या आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने लोन ले रखा है, तो उनके पास आप जाएंगे। अगर वो आपको मान लीजिए कि पैसा देने से मना कर रहे हैं, तो आप जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हैं। तो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं,
या फिर कोई क्रेडिटर आपसे आके कहता है कि भाई आप हमारा पैसा वापस कीजिए, तो आपने जो पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस में और अचानक से कोई मांग ले, तो कुछ चाहे वो कुछ दिन के लिए हो, कुछ हफ्ते के लिए हो या कुछ महीने के लिए हो, वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट कि आपको अगर पैसा मांग ले क्रेडिटर आपसे और जो है उसका पैसा जो है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर द पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपके प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक जो है पहुंचाना है, तो उसमें आप कैसे जो है अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं उसके पास। क्या आप जैसे अभी आप अपने होलसेलर को सेल किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को करता है, फिर वो रिटेलर को करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का जो है हमारे फर्म से कि वो कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट को लेकर जा रही है। तो अब एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो उसमें क्या है कि कोई परेशानी नहीं है, टेरेन भी अच्छा है, आपके जो रोड्स हैं वो भी अच्छे हैं, आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अच्छा है, और जो वेदर है, जो आपका जनरल एनवायरनमेंट है, जनरल जो नेचुरल क्लाइमेट है वो भी ठीक है, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप यही प्रोडक्ट को लेकर जो है हिल एरियाज में जाएं, जम्मू कश्मीर में जाएं, उत्तराखंड में जाएं, शिमला में जाएं या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाएं या नीचे चले जाएं सबसे, तो वहां पे आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे यू विल फेस डिफरेंट टेरेन, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट नेचुरल एनवायरनमेंट, तो वहां पे आपको परेशानी होगी। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स जो कैसे आपके प्रोडक्ट को, कैसे आपके गुड्स को आपके फाइनल कस्टमर तक पहुंचा रही है, वो आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में आएंगे। मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज फर्म, दे आर बेसिकली द कंपनीज व्हिच प्रोवाइड यू इनसाइट ऑन कस्टमर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर। तो आपके जो भी सर्विसेज एजेंसीज हैं कि भाई आपका कस्टमर क्या पसंद करता है, उसको क्या नया चाहिए, या हम कहेंगे जिनको जो कंपनी जो सर्विसेज एजेंसीज जो हमें मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, उसको क्या चीजें पसंद है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करती है। तो आपकी मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज फर्म्स हो गई। इसमें आपकी आफ्टर सेल सर्विस फर्म्स भी आ सकती है, आप कॉल सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी, तो जो भी सर्विसेज एजेंसीज फर्म्स है कि आपको मार्केटिंग इनसाइट प्रोवाइड कर रही है, आपके कस्टमर के ऊपर इनसाइट प्रोवाइड कर रही है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना सक्सेसफुल है, या आपका प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। सो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, योर रिसेलर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज फर्म्स। Next is your customer markets. When we were discussing about marketing, so we saw various types of markets like customers market, business market, government markets. So these were the different types of markets. So your customer markets, because you are dealing in the products and services that have very prime objective to sell to your final customer. So your customer markets, how your customer market is, what does your customer prefer and what they like. So these customer markets will have a direct impact on your products. For example कि आपने कोई क्लोथ का नया ब्रांड लेकर आए, आप 2-3 साल अच्छा आपने उसको सेल किया, उस पर अच्छा आपने रिटर्न कमाया, उसके बाद वो आउट ऑफ फैशन हो गया, उसके बाद कुछ नया आ गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ ट्रेंड चला गया, आउट ऑफ फैशन चला गया, तो आप उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, तो उसमें आपको कुछ नया लेकर आना पड़ेगा। तो कस्टमर मार्केट्स विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। योर कंपटीटर्स, बिकॉज़ द बिजनेस में एक बात कही जाती है कि किसी बिजनेसमैन को जितना अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में पता ना हो, कहीं उससे ज्यादा उसे अपने कंपटीटर्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आज शाम को आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या पता वो स्ट्रेटेजी आपकी लीक हो जाए या आपका कंपटीटर उससे पहले सोच के वो बैठा हुआ है। तो व्हाट योर कंपटीटर्स आर डूइंग, व्हाट इज देयर नेक्स्ट स्टेप, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम, यू मस्ट
formulate your strategies accordingly, keeping in mind your customers' strategies. Competitors' strategies. So what are your competitors are doing? You must be aware of them and accordingly formulate your strategies. एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. अब जैसे कि एग्जांपल हम अगर लें, अब जैसे डेटा पैक्स से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि डेटा पैक्स को मैं एग्जांपल इसलिए बार बार लेता हूं क्योंकि इसमें कई सारे एग्जांपल फिट बैठ जाते हैं, चाहे वो नोवेल्टी की बात हो, नया प्रोडक्ट लाने की बात हो, उसमें कुछ ऐड ऑन करना, उसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, तो कई सारे एग्जांपल्स में फिट बैठ जाते हैं. अब डेटा पैक्स में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे हम लोग देखते हैं कि जियो लेकर आया था जो 4G का डेटा था इंडिया में, तो आप अगर आज के टाइम में देखें तो जो डेटा पैक्स के प्लान है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो आपका कंपटीटर क्या ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को, आपको उसको वॉच करना पड़ेगा. जैसे स्टार्टिंग में जियो लेकर आया, पहले फ्री दिया, देन उसके बाद उसने प्राइसेस चार्ज किए, उसके कुछ महीने बाद फिर हमने देखा कि जो बाकी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे वो भी अपने डेटा पैक्स के या अपने जो कॉलिंग के रेट्स हैं उनको डाउन करने लगे. तो ये स्ट्रेटेजी होती है मार्केट में सरवाइव करने के लिए कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपके अपने कॉम्पिटिटर्स पे एक क्लोज वॉच की जरूरत होती है, उन पे निगाहें बना के रखने की जरूरत होती है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं. उसके बाद पब्लिक्स में कई सारे मीडिया, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, कंज्यूमर फोरम्स, जनरल पब्लिक, लोकल पब्लिक. तो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं. मीडिया जो आपकी, जिसमें आप अपना जो पब्लिक रिलेशन है उससे मेंटेन करके चल रहे हैं, तो मीडिया आपके, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स को उसको प्रमोट करना है, उसमें आपका जो ओपिनियन फॉर्म करने की बात होती है वो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फाइनेंशियल पब्लिक्स आर दोज हु हैव प्रोवाइडेड यू फाइनेंस, who have given loans, advances to you. Government basically the one of the major stakeholders. अगर कोई ऐसा लॉ लेकर आती है जिसपे आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े, जैसे अभी PUBG की एग्जांपल इन्होंने दिया कि सर उन्होंने तो PUBG को बैन किया, गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ. दैट शुड बी इन द माइक्रो एनवायरनमेंट. यस, इट इज इन माइक्रो एनवायरनमेंट. और गवर्नमेंट कई बार मैक्रो में भी चली जाती है. जैसे हम लॉज की बात करते हैं, जनरल लॉस की बात करते हैं. कंज्यूमर फोरम्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिसमें कुछ डिफेक्ट है, आपका कस्टमर चला गया कंज्यूमर फोरम में, आपके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च कर दी अपने आपके कंपनी के खिलाफ, तो वो भी आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ. जनरल पब्लिक जो आपका गुड्स ले रही, और लोकल पब्लिक कौन, जहाँ पे आप ऑपरेट करें, जिस एरिया में आप ऑपरेट करें, तो वहां का जो लोकल सोसाइटी है. जो हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो उसमें हम सिंपली कहते हैं कि अगर आप किसी सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं एज अ बिजनेस फर्म, तो यू मस्ट बी डूइंग समथिंग दैट टेक्स केयर ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी के जो वेल ऑफ के लिए है, उसके वेलफेयर के लिए है, वो आप करते रहिए. क्योंकि जो जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप वहां से इनपुट भी ले रहे हैं और आउटपुट भी आप वहां दे रहे हैं. तो बेसिकली आप रॉ मटेरियल भी वहीं से ले रहे हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी वहीं पे अपना सेल कर रहे हैं. सो दिस इज माइक्रो एनवायरनमेंट. वेरियस एक्टर्स एंड फोर्सेस दैट आर इन द माइक्रो एनवायरनमेंट आर कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कस्टमर मार्केट्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक्स. इट इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, कंज्यूमर फोरम्स, जनरल पब्लिक एंड लोकल. Moving ahead, macro environment. So macro environment, how, what does it mean? The macro environment consists of the larger societal forces that affect the micro environment. तो जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो हमारा टास्क एनवायरनमेंट है, वो एक सबसेट है, एक पार्ट है मैक्रो एनवायरनमेंट. तो मैक्रो एनवायरनमेंट आपका लार्जर फोर्स है, लार्जर जो है कॉन्सेप्ट है, और माइक्रो एनवायरनमेंट उसका एक पार्ट है. माइक्रो एनवायरनमेंट एक छोटा सा पार्ट है. सो द एक्टर्स ऑफ macro environment consists of larger societal forces. We will discuss one by one.
The company and all of the other actors operate in a larger micro environment of forces that shape opportunities and pose threats to the company. तो आप जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस लार्जर एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी कंट्री का कि आपने इस कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, तो उस कंट्री के जो भी एनवायरनमेंट है, उस कंट्री की डेमोग्राफी क्या है, उसकी टेरेन कैसा है, उसका ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है, उसका सोसाइटी का सिस्टम कैसा है, उसका कल्चर क्या कहता है, उसके जो ट्रेडिशंस है वो क्या कहते हैं, उसके वहां पे बिजनेस गवर्न करने के लिए लॉज क्या कहते हैं, तो वो सारे एनवायरनमेंट पार्ट होंगे हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के। तो the macro environment, what does it do? It does create opportunities for you, for your company, and it also poses threats to your company. तो जब हम SWOT एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अगर हम इसमें बाइफरकेट करना चाहें, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी चली जाएंगी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में, और जो आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं वो आ जाएंगी आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करते हैं तो वो हमें पता होती है। भाई आपसे अगर मैं आपका पूछूं कि भाई आप बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बता दोगे, आपकी वीकनेस क्या है वो भी आप बता दोगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, इसका आपको अंदाजा है, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि ये मेरे लिए टाइम आने वाले में ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ये मेरे लिए थ्रेट्स हो सकती है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा एक पहली बात कि वो एक लार्ज फोर्स है जिसके अंदर हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। बिजनेस ऑपरेट करने के साथ साथ जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है वो भी उसके अंदर फंक्शन कर रहा है। किसके अंदर फंक्शन कर रहा है? हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या कर रहा है हमारे लिए, हमारे का मतलब हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को जो है शेप कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है और थ्रेट्स पोज कर रहा है। सो एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक, सब तो दो जो फर्स्ट हमारा बेसिक जो सबसे पहला एलिमेंट्स होता है मैक्रो एनवायरनमेंट का, वो हमारी डेमोग्राफी होती है या डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब डेमोग्राफी की हम बात करें तो डेमोग्राफी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। These 5 factors constitute the part of your demography, your demographic variable. तो demographic factors आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के या मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? जब आप डेमोग्राफिक में जाएंगे तो उसमें आप एज देखेंगे, तो एज में देखेंगे कि सपोज करो कि आपको कौन से सेगमेंट में जाके आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और उसको सेल करना है। अब एज में क्या है कि आप किड्स के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टीन्स के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अडल्ट्स के लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैच्योर पीपल के लिए कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं, या जो है उससे ऊपर आप जो 80s प्लस हैं उनके लिए आप कर रहे हैं। तो आपका जो एज फैक्टर है कि आप कौन से सेगमेंट में जाके अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप सेल कर रहे हैं। तो एज आपका, उसी के अकॉर्डिंगली जेंडर कि वेदर यू आर डीलिंग इन फीमेल सेगमेंट, मेल सेगमेंट और थर्ड जेंडर दैट इज ट्रांसजेंडर, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कई कंपनीज होती हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, तो जब हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो फीमेल्स का जो फीमेल को ही फीमेल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए ही ज्यादा होता है। उसके बाद आपका रेस है कि भाई आपका जो कलर है, क्रीड है, कास्ट सिस्टम है, तो वो सारी चीजें हैं आपकी कि आप जो है कई बार होता है कि जो अब जैसे हम हमारे यहाँ पे क्या है, कई तरह के रिलीजन हैं, कई तरह की कास्ट हैं। अब कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हैं,
तो ये सारी चीजें हैं। तो आप हर किसी की अपनी अपनी जो है चॉइसेस हैं, अपनी अपनी जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं। अब एग्जांपल दूं आपको एक छोटा सा, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो अगर मेरा पर्पस नहीं किसी को हर्ट करने का, एंड अगर कोई किसी को ऐसा लगता है तो से एडवांस में सॉरी कहता हूँ। तो जैसे आप कई रिलीजन होते हैं तो उनका जो वो होता है वियरिंग स्टाइल होता है, अलग होता है। अब जैसे हम क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस का अलग होता है, जो है हमारे हिंदूज का अलग होता है, जो अदर कम्युनिटीज हैं उनका अलग होता है, मुस्लिम्स का अलग होता है, और आपके जैन हैं उनका अलग होगा, पंजाबी हैं उनका अलग होगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आपके रिलीजन्स हैं उसमें आपका पहनावा कैसा है, आपको उनकी जो क्लोथिंग स्टाइल क्या है, और उसके अलावा वो लोग अपना उनकी फूड हैबिट्स अलग होंगे, उनका अलग कल्चर होगा, उनके यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होंगे, उनके यहाँ पे जो वर्शिप स्टाइल होगी, वो सारी चीजें अलग होती हैं। तो आपको एज अ कंपनी जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल इसमें हम और ऐड करते हैं कि जैसे जब हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे होली हो गया, ईद हो गया, दशहरा हो गया, या और जो हमारे फेस्टिवल आते हैं, और जब हमारे यहाँ पे जो है जब मई जून का मंथ आता है, जब हमारे यहाँ पे रमजान होता है, तो जिसमें पूरे के पूरे मंथ जो है मुस्लिम्स जो है वो क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं। और फास्ट कैसा कि भाई सुबह से शाम तक आपको पानी भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, और आपके यहाँ पे जो मतलब कि सलाइवा होता है उसको भी ये प्रोहिबिट किया जाता है कि भाई आप उसको भी अंदर नहीं ले जाएंगे। तो बहुत जो टफ होता है। तो उसमें आप क्या खाते हैं, अब कई बार आप ऐड में देखते होंगे जब तो हिंदूज के लिए, हिंदूज को टारगेट करने के लिए उनको अपना प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए क्या किया जाता है कि भाई सेंधा नमक, व्रत का शुद्ध नमक। तो ये जो सारी चीजें हैं कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक ऑफर कर सकते हैं, उनको कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को वो परचेज करें। मूविंग अहेड, ऑक्यूपेशन, वेदर योर customers have employment or they are unemployed, or if they are in employment, whether they are in private sector, whether they are in government sector, whether they are in semi government, semi private sector. So all this occupational level, the occupational structure, ऑक्यूपेशन का जब हम बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। एक का आपका प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शियरी। तो जो हमारा प्राइमरी होता है वो हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर और उसकी एलिड जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और जो टर्शियरी जिसको हम थर्ड सेक्टर कहते हैं वो हमारा सर्विसेज है। तो आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, कि भाई आप जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम सिंपली कहते हैं कि जो 1 किलोमीटर का दायरा है उसमें कितनी पॉपुलेशन है, लोगों की संख्या कितनी है, इसको जो हम उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जब मेजर करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में आप कितनी पॉपुलेशन आ रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो एज अ बिजनेसमैन आपके लिए उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। व्हाई? बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर विल परचेज योर प्रोडक्ट्स। तो और ज्यादा पॉपुलेशन है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है लेकिन उतनी परचेजिंग पावर ना हो, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दिस demographic variable plays a very important role. Not only demographic variable but also all other factors that are lined up play a very important role. So demographic actor or force, the very first force of your macro environment. उसके बाद आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो उसमें आपकी इकोनॉमी के टाइप क्या है, आप मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या आप जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो कैसा है आपका। क्योंकि आप जब 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने इनके डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखे होंगे, उसमें क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं वो देखे होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट है या नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होती है, डेवलपमेंट अलग होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सिंपल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर होता है,
और जो हमारे इसमें इंडिकेटर्स हैं वो नॉर्मली न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स होते हैं। डेवलपमेंट में आप अलग चीजों की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, उसमें ग्रोथ कैसी है, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वेल्थ क्या है, तो ये सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, वो इम्पैक्ट करेंगे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के, आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट के। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डिजाइनिंग योर मार्केटिंग पॉलिसीज। क्योंकि हम अगर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी होना अच्छी बात है क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और अगर लोगों के पास इनकम भी नहीं है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद सौदा नहीं है, तो वो भी आपके लिए नुकसान है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का क्या है, लोग कितना परचेजिंग, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना परचेज कर सकते हैं, वो किन चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ से इनकम आ रही है, तो वो सारी चीजें आपके इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आती है। नेक्स्ट, नेचुरल। तो आपके यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको प्रोडक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है हिली एरियाज में तो वहाँ का अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। आप नीचे चले जाएं जो है उसमें समुद्री तटीय क्षेत्रों में चले जाएं, कोस्टल एरियाज में चले जाएं तो वहाँ पे आपको अलग मिलेगा। प्लेन एरियाज में आ जाएं, मैदानी एरियाज में आ जाएं, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है बेसिकली, और कुछ पार्ट हमारा साउथ इंडिया, तो वहाँ पे आपको अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। उसके अलावा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी आपको नेचर से मिल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री also impacts your marketing environment, your business environment. Technological environment, very simple to define and very simple to understand. The passage of technology, the improvement in technology, advancement of technology also impact your business. छोटा सा एग्जांपल, आप जो है क्या कहते हैं, गूगल मैप कर रहे हैं, आप सपोज करके कार में ड्राइव कर रहे हैं, तो गूगल मैप के अंदर फैसिलिटी क्या है कि आप उसको ड्राइवर मोड पे रख दें या ऑटो मैप पे डाल दें उसको, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है क्या कहते हैं उसमें वो दिखाते चला जाएगा कि आपको फोन आ रहा है, तो ड्राइवर मोड पे आपने डाल दिया है तो आपको पिकअप करने की जरूरत नहीं है, बस वो आप जो है जो भी उसमें फंक्शन है छोटे से वो परफॉर्म कीजिए और आपका जो है कॉल ऑटोमेटिकली वो आंसर हो जाएगा। और कॉलिंग के अंदर ये फीचर है कि ऑटो आंसर का ऑप्शन है, या कई बार हम डायल करते हैं तो रीडायल की फैसिलिटी है। आपने एक बार मिलाया, आपको लगता है कि मैं बार नहीं मिला सकता था, आपने ऑटो रीडायल सेट कर दिया। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ एक क्या कहते हैं, इसको हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, लेकिन जो हमारी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए एक थ्रेट बन के आती है। फॉर एग्जांपल, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। और जब 90s के टाइम में 1990-95 में जब हमारे यहाँ पे बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो बहुत से लोगों को लगा, जो बैंक एम्प्लॉइज थे, कि हमारी जॉब चली जाएगी। तो उसका बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उनको परसुएड करा कि नहीं, आपकी जॉब नहीं जाएगी, आपको बल्कि अपने आप को और स्किल्स को लर्न करने का मौका मिलेगा और जो है जॉब्स क्रिएट होंगी। तो टेक्नोलॉजी आपको कई बार आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, आई गेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन अ लिटिल बिट। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कही जाती है किसी कंट्री का ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है कि मतलब है कि बहुत ही जो पहला डॉक्यूमेंट होता है जो पूरे कंट्री के सिस्टम को गवर्न करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के द्वारा ही कोई भी कंट्री गवर्न करती है, कोई भी कंट्री चलती है। तो उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और उनकी फिलोसफी क्या है, वो सारी चीजें हैं।
लॉज है आपके, जैसे मैंने आपको बताया, जनरल लॉज हो सकते हैं, बिजनेस लॉज हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज है, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट है, आपका लीगल एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, आपकी ईडी है, आपकी जैसे स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी है, और बैंक में अगर हम देखें तो आरबीआई है। तो दीज गवर्नमेंट एजेंसीज कम अंडर द मैक्रो एनवायरनमेंट अंडर द हेड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो हेड है उसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, गवर्नमेंट एजेंसी, प्रेशर ग्रुप्स कुछ नहीं है, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स कौन से, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे मैंने आपको कंज्यूमर फोरम्स का एग्जांपल दिया, और कई बार हमारी सिविल सोसाइटीज होती हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो एक कई बार जब इसलिए बनाया जाता है कि गवर्नमेंट जो है अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, तो एक उस पर चेक एंड बैलेंस बना रहे, उसलिए हमारे जो है हम प्रेशर ग्रुप्स का क्रिएशन करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई रूल आता है, कोई नया रूल आता है, तो उसके खिलाफ जो है पिटीशन फाइल कर दी जाती है, जिसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पिटीशन फाइल कर दी जाती है। हमें पता भी नहीं होता कि क्या रूल है, वो क्या कहता है, वो जब तक हम उसके बारे में समझते हैं या हम जब उसकी हेडलाइन पढ़ते हैं तब तक पता चलता है कि इसमें पिटीशन फाइल कर दी गई। तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके कंट्री में भी और आपके कंपनी के लिए भी, कि कोई आप ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसपे आपको बिजनेस जो कंट्री है उसको नुकसान हो, वहां के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नुकसान हो। उसके बाद है हमारे कल्चरल फोर्सेस। तो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, परसेप्शन क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स का बिहेवियर क्या है। तो आप वैल्यू है, कोई आपके वैल्यू सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो है चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनका जो है फीट टचिंग की जाती है, तो इस तरीके से है। तो ये जो हमारा एक वैल्यू सिस्टम है। और उसके अलावा हम कई बार हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में डिफरेंट कल्चर हैं, तो आपको अलग अलग एरियाज में जाएंगे अलग अलग आपको कल्चर मिलेंगे। आप पंजाब की साइड चले जाइए, उनका अलग कल्चर मिलेगा, राजस्थान चले जाइए वहाँ पे अलग कल्चर है, आप जो है साउथ में चले जाइए वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में आ जाइए वहाँ पे कल्चर है, इवन विद इन अ स्टेट कैन बी देयर कैन बी डिफरेंट कल्चर। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप यूपी में चले जाइए, ईस्टर्न यूपी में चले जाइए, आपको अलग कल्चर मिलेगा, वेस्टर्न यूपी में आइए आपको अलग कल्चर मिलेगा। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है, कल्चर के साथ आपका वैल्यू सिस्टम भी चेंज होता है। जैसे आपका कल्चर दूसरा कल्चर चेंज हुआ, वहां पे उनकी वैल्यू सिस्टम भी चेंज हो जाती है, कि वहां पे उनकी अलग परसेप्शन है, उनके अलग प्रेफरेंसेस हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उनका बिल्कुल अलग कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट्स के अंदर कल्चर है, असम का अपना अलग कल्चर है, मेघालय का अलग कल्चर है, उसके आप त्रिपुरा वगैरह में जाते हैं वहां पे अलग कल्चर है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपका, तो अलग अलग जो हमारे कल्चरल फोर्सेस हैं वो आपके एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कल्चरल फोर्सेस के अंदर आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी परसेप्शंस क्या है, कि जैसे आपका परसेप्शन किया जाता है, कई लोग इस बात को मानते हैं कि ये परसेप्शन है कि सुबह सुबह उठ के जो है कई बार हमें जो है खाना नहीं खाना चाहिए, हमें मतलब कि थोड़ा बहुत जो वर्शिप है वो कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें आगे का काम स्टार्ट करना चाहिए। कई बार इससे बिल्कुल जो है अपोजिट जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी जो ट्रेडिशन क्या है, वो क्या कहते हैं, वो सारी चीजें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। प्रेफरेंसेस, परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रेफरेंसेस, और these preferences govern behaviors of individuals. So this is your macro environment under which your company operates, and also the micro environment of your company gets impacted, or it also operates. तो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात हुई, और उसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, 5-7 मिनट हमारे पास टाइम है। सर्विसेज की बात कर रहे थे, सर्विसेज मार्केटिंग, देन दिस पर्टिकुलर यूनिट विल बी फिनिश्ड। So a service is nothing but any intangible product which is essentially a transaction and is transferred from the seller to the buyer in exchange for some consideration. तो सर्विस क्या है, हमारा एक intangible प्रोडक्ट है जिसमें हम जिसको एक ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, और वो ट्रांसफर की जाती है कहाँ से,
सेलर से बायर के पास, और उसमें क्या होता है, कुछ कंसिडरेशन होती है। कंसिडरेशन का मतलब है मॉनेटरी कंसिडरेशन, और यह कुछ कंसिडरेशन नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि अगर आप किसी कंपनी की सर्विस अवेल कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। आप एनजीओ की सर्विस अवेल कीजिए, वहां पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। तो एनी इंटेंजिबल प्रोडक्ट विच इज एसेंशियली अ ट्रांजैक्शन एंड is transferred from the seller to the buyer in exchange for some consideration or no consideration. So services are usually intangible economic activities offered by one party to another. जब हम business की बात करते हैं तो ये this is an economic activity which is offered by one party to another. Often time based, अब इसके characteristics बता रहे हैं। Often time based services, मिस्टेक हुई लिखने आते हैं, सर्विसेज परफॉर्म्ड ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट्स टू रेसिपिएंट्स, ऑब्जेक्ट्स और अदर असेट्स फॉर व्हिच परचेजर्स हैव रिस्पांसिबिलिटी। तो सर्विस, आप कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हैं, ऑफन टाइम बेस्ड होती है, और ऑब्वियस सी बात है वहां पे टाइम की बात हुई है, तो वो जो आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए। सपोज आपने कार टैक्सी हायर करी, अब टैक्सी हायर आपने कर ली, आपको जाना है दिल्ली से, मान लेते हैं कि आपको जाना है जयपुर जाना है, तो आप दिल्ली से जो जयपुर जा रहे हैं उसके लिए आपने टैक्सी हायर कर ली। अब आपको यहाँ पे आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट क्या है कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है। टैक्सी के थ्रू, सर्विस टैक्सी हायरिंग के थ्रू आप दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं, और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल रहा है। तो सर्विस बेसिक जनरली ऑफन टाइम बेस्ड services performed bring about the desired result to recipients, objects or other assets for which the purchasers have responsibility. अब बात होती है सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज मार्केटिंग इज बेसिकली organizational function as a set of processes for identifying or creating what, communicating and delivering किस चीज का value to customer and for managing customer relationship in a way that benefit the organization and stakeholders. तो सर्विस, अगर हम मार्केटिंग की डिफिनेशन की बात करें तो सर्विस जो है ऑलमोस्ट उसके आसपास ही होती है। सर्विस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसको जो है डिलीवर कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या वैल्यू, क्योंकि सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है कि भाई आप अगर दिल्ली से जयपुर गए तो आपने सर्विस ली, तो उसकी वैल्यू है कुछ, कि आप उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं तो और आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। तो कस्टमर्स एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन अ वे दैट बेनिफिट बोथ योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स में हमारे वही 7-8 जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपकी कंपनी है, आपके एम्प्लॉयज है, आपके जो पब्लिक्स है, आपकी गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें रहेंगी। आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, तो वो सारी चीजें रहेंगी। Moving ahead, the characteristics of services. Services are intangible. That is tangibility. Intangibility basically means anything that cannot be seen, tasted, heard or smelled. सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज लिखा है cannot be seen, tasted, felt, heard और smelled before they are born. तो आप उसको तब तक फील नहीं कर सकते। वैसे तो सर्विसेज में यही खास बात होती है सर्विसेज की, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि फेल्ट, तब तक आप उसको महसूस नहीं कर सकते जब तक आप उसको परचेज ना करें। तो वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, फर्स्ट एलिमेंट इंटेंजिबल, दैट इट कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट और हर्ड और स्मेल्ड बिफोर दे आर बॉट। जब तक आप उसको परचेज नहीं करेंगे तब तक आप उसको ना तो देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, हर्ड कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो सर्विस के अंदर ना हम उसको देख सकते हैं, ना उसका टेस्ट क्या है वो बता सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, ना ही उसकी स्मेल कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये सर्विस हमें अच्छी लगी। एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कॉस्मेटिक्स कोई सर्जरी करवा रहा है तो जब तक वो कॉस्मेटिक पूरी तरीके से अप्लाई ना कर दिया जाए चेहरे के ऊपर वो जो सर्जरी है, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि क्या ये सर्विस अच्छी थी या खराब थी। उसी तरीके से आपका एयरलाइन का पैसेंजर्स का दे रखा है कि अगर आप पैसे कोई एयरलाइन की टिकट बाई करता है तो उसके अंदर दो उसके जो है आस्पेक्ट है। पहला कि आप और आपका सामान जो है सेफली पहुंचेगा और जो है होपफुली और जो है सेम टाइम पे इंटेंडेड डेस्टिनेशन।
सर्विस इंसेपरेबिलिटी बेसिकली कि जो सर्विस इंसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जो सर्विस आपको ऑफर की जा रही है और जो आदमी आपको या जो एम्प्लॉय या जो कंपनी ऑफर कर रहा है उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में जाते हैं, वेटर को ऑर्डर करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, वो आपके लिए ले आता है, जो ले आ रहा है वो एक फिजिकल गुड है, लेकिन जो वेटर लेकर आ रहा है वो आपको सर्व करेगा। तो अगर आप कहो कि भाई आपके जो सर्विंग वो है, सर्व है, उसको अलग कर दो और आप अलग बचो, कैसे हो सकता है? तो इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको आप सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलग करना इम्पॉसिबल है और अलग करते हैं तो सर्विस का जो है एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो उसके बाद हमारे क्या है, सर्विस वेरिएबिलिटी। सर्विस वेरिएबिलिटी का मतलब है सर्विस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और इवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे यहाँ पे मैरियट होटल का एग्जांपल दे रखा है कि आप एक जो है कस्टमर जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव के पास या रिसेप्शन पे जाते हैं, एक स्माइलिंग है, बहुत पोलाइट तरीके से आपसे बात करता है और आपकी जो क्वेरीज है या आपकी जो भी है चीज़ें हैं, आप जो भी उनसे जानकारी मांगते हैं, बहुत पोलाइट तरीके से हैंडल की जाती है और आपको सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर दिया जाता है। दूसरी तरफ दूसरा हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो बहुत रूड हो सकता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है और आपको उतना पोलाइट बिहेवियर ना मिले। तो वेरिएबिलिटी का मतलब यही है कि ये सर्विसेज हमारी वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन उसको यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। द लास्ट वन, सर्विस पेरिशेबिलिटी। इट सिंपली मीन्स कि आप जो भी सर्विस आपको इस टाइम पे अगर लेनी है तो अगर आपने उस टाइम पे उसको अवेल नहीं करी तो वो जो है लैप्स हो जाएगी, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं कि सपोज करो कि भाई मैं अभी नहीं करता, बाद में उसको करूंगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है कि सर्विस अगर आप एक बार क्रिएट करें और उसको ऑफर की गई तो वो उसी टाइम के लिए यूज है, अदरवाइज उसको आप बाद में स्टोर कर सके, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर्स हैं हमारे, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट दे दी कि सपोज करो कि आपको 11 AM का टाइम दे दे कि आप 11 AM पे आइएगा, आपको ये सर्विस मैं प्रोवाइड करूंगा और आपसे फीस चार्ज करूंगी। आप नहीं जाते तो आपकी सर्विस लैप्स हो गई, और अगर आप बाद में जाते तो क्या हो सकता है, आपसे वो फाइन भी चार्ज कर लें। क्यों फाइन चार्ज कर लें? कि भाई मैंने इस टाइम पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी थी, आप आए नहीं, मेरी जो वैल्यू थी, मेरी जो सर्विस थी वो लैप्स हो गई। मैं इस अगर आपको नहीं आना था तो आप बता देते तो मैं दूसरे पेशेंट को देख लेता। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सर्विस के। पहला कि वो इंटेंजिबल है, दूसरा इनसेपरेबल है, तीसरा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा कि हमारा पेरिशेबल है कि अगर आपने जिस टाइम पे उनको यूज करना है वहां पे किया नहीं तो वो आप उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते।